A very good o'clock to all the dear students. Students, and I'm Nikita ma'am, your geography teacher. So in my previous video, we discussed about the landforms of the earth and how they are formed. There we discussed two processes by which these landforms are formed, maybe endogenous and exogenous processes. And we also studied about various types of landform that are formed in result of different processes taking place on the earth's surface. Okay, so in today's video, we are going to start our discussion over some of these important landforms, among which the most important is our mountains, or the most visible form is the mountains. So mountains are spectacular landforms that rise several hundred meters above the surroundings. Okay, what are these mountains? सो बेसिकली माउंटेन्स आर रेज्ड प्लेटफॉर्म. ओके, माउंटेन्स जो होते हैं वो अर्थ से ऊपर उठे हुए प्लेटफॉर्म्स होते हैं, सेवरल 100 मीटर्स हाई. ओके, एंड दीज आर नेचुरली रेज्ड प्लेटफॉर्म्स. ओके, सम प्लेटफॉर्म्स जो हम बनाते हैं वो भी अर्थ से ऊपर होते हैं, रेज्ड होते हैं. ओके, बट दीज माउंटेन्स आर नेचुरल थिंग्स. ओके, ये नेचुरल लैंडफॉर्म्स होते हैं विच आर रेज्ड अबव द अर्थ सरफेस अबव several hundred meters. Okay, and mountains which are less than 600 meter in height are known as hills. Okay, कुछ mountains की height 600 meters से जिनकी कम होती है, they are known as hills. So most mountain have ridges and sharply pointed tips called peaks. Okay, these are some features of the mountains. You can see that किस तरीके से we can notice here ridges and peaks. mountains में ridges और peaks होते हैं. So what are these ridges और peaks? ये आप देख रहे हैं peak. पीक क्या होती है? इट इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अ माउंटेन. ओके, और द हाई पॉइंट्स इन अ माउंटेन. ठीक है, देन रिजेस क्या होते हैं? रिजेस आर एक लाइन along the mountain. Okay, it's a line, or it's a long way, कंटिन्यूस नैरो टॉप ऑफ द माउंटेन. ओके, ये नैरो लाइन होती है माउंटेन के टॉप पर. ठीक है, एंड द साइड्स ऑफ द माउंटेन स्लोप अवे स्टीपली ऑन ईदर साइड्स ऑफ द रिज. ठीक है, ये जो रिज आपको दिख रही है, जो लाइन, इसके दोनों साइड्स पर इस तरीके से माउंटेन का स्लोप होता है. ओके, एंड पीक्स क्या होते हैं? दीज आर पॉइंटेड टिप्स, शार्पली पॉइंटेड टिप्स. ओके, a long line of mountains that are connected together form a mountain range. Okay, when several mountains connect together they form a mountain range. जब बहुत से mountain एक साथ खड़े होते हैं, connected होते हैं एक दूसरे से, तो वो एक range बनाते हैं या एक mountain chain बनाते हैं जिसमें several parallel mountain ranges होती हैं. Okay, several mountains form a mountain range and a mountain chain में बहुत से parallel mountain ranges होते हैं. Okay, so mountain range, collection of mountain, and mountain chain is a collection of ranges. Okay, parallel ranges. So Himalayas, Alps, Rockies and Andes form mountain chains that cover very large areas with several parallel ranges and वैलीज. ओके, हिमालयाज जो है दैट इज़ अ चेन ऑफ माउंटेन रेंजेस. इसमें काफ़ी माउंटेन रेंजेस आती हैं, ऐसे ही एल्प्स, रॉकीज़ नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं. यूरोप के इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं, माउंटेन चेन्स हैं जिसमें सेवरल माउंटेन रेंजेस कवर होती हैं. ओके, there are different kinds of mountains. Now we study about different kinds of mountains and how they are formed. So they can be classified into basically three types: fold mountains, block mountains and volcanic mountains. Okay, fold, block and volcanic mountains. So each type of mountain is a result of a different type of force acting on the earth's surface. Okay, और earth's crust. हर तरह का mountain एक different type की एक्टिविटी से बनता है. ओके, सो लेट अस फर्स्ट कवर अबाउट अवर फोल्ड माउंटेन्स. फोल्ड माउंटेन्स कैसे बनते हैं? द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल रिजिड प्लेट्स कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स. लास्ट वीडियो में भी हमने पढ़ा था कि अर्थ की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कुछ प्लेट से बना हुआ है, जिनकी वजह से ये सारे मूवमेंट्स होते हैं, चाहे एंडोजेनस प्रोसेस चाहे एक्सोजेनस प्रोसेस. ओके, तो ये जो प्लेट्स हैं कॉन्स्टेंटली मूव करती हैं अराउंड द फोर्स, जो कि अर्थ के अंदर से एक फोर्स आती है, जैसे कि मॉल्टन रॉक के स्ट्रीम्स आते हैं या मैग्मा है, तो उनकी फोर्स की वजह से जो प्लेट्स होती हैं वो मूव करती हैं एंड दे आर पुश्ड टुवर्ड्स ईच अदर. व्हेन टू प्लेट्स आर पुश्ड टुवर्ड्स ईच अदर, यानी एक दूसरे की तरफ आती हैं. यू कैन सी हियर in this picture
कि जब दो प्लेट्स, ये भी क्रस्ट है, ये भी क्रस्ट है, ठीक है, ये दो प्लेट्स हैं, ये जब एक दूसरे की तरफ आती हैं, so fold mountains are formed, ठीक है. When two plates move towards each other, then fold mountains are formed. कैसे? The land between them is squeezed and thrown up in a series of massive folds. Squeezed and thrown up in a series of massive folds. इनके बीच की लैंड जो है स्क्वीज हो जाती है और अर्थ पे कुछ फोल्ड्स फॉर्म हो जाते हैं जिनको हम फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं. ओके, सो फोल्ड माउंटेन्स आर फॉर्म्ड ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स एज टेक्टोनिक प्लेट्स मूव वेरी स्लोली. फोल्ड माउंटेन्स को बनने में मिलियन ईयर्स का टाइम लगता है क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट सडन या फास्ट नहीं होता है. अगर उनका मूवमेंट सडन होगा, फास्ट होगा या बहुत जल्दी जल्दी होगा तो इट विल क्रिएट हजार्ड ऑन दी सरफेस ऑफ द अर्थ, जैसे कि हम अर्थक्वेक देखते हैं. तो ये सब क्या रिजल्ट है टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट का. तो फोल्ड माउंटेन बनने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं. ओके, सो फोल्ड माउंटेन्स की एग्जांपल क्या है? दे कैन बी यंग और ओल्ड. ये दो टाइप्स के हो सकते हैं, यंग फोल्ड माउंटेन्स और ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स. ठीक है, दे बोथ रेफर टू द टाइम ऑफ फॉर्मेशन, जब वो बने हैं. इफ दे आर फॉर्म अ लॉन्ग टाइम अगो देन दे आर ओल्ड माउंटेन्स, एंड दे फॉर्म रिसेंटली सो दे आर young fold mountains. Okay, so for example, Himalayas are the young fold mountains and Aravalis are the old fold mountains. Now let us study the difference between slight difference between young fold and old fold mountains. Young fold mountains have steep and high peaks. ठीक है, ये mountains जो होते हैं because they have recently formed, तो इनकी जो peaks होती हैं वो pointed होती हैं, बहुत ही ऊंची होती हैं. ठीक है, sharp होती हैं. They are about 10 to 12 million years old. ओके, इतने यंग फोल्ड होते हुए भी दे आर 10 to 12 मिलियन ईयर्स ओल्ड. मीन्स हाउ यू कैन एस्टिमेट कि कितना लंबा टाइम लगता है एक माउंटेन को फॉर्म होने में. सो एट ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स दे हैव बीन वर्न डाउन इनटू हिल्स एंड आर शॉर्टर. ठीक है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, उनके ऊपर क्योंकि क्लाइमेट का इफ़ेक्ट होता है, उनके ऊपर डिफरेंट नेचुरल कैलेमिटीज़ का इफ़ेक्ट होता है, रिवर्स का इफ़ेक्ट होता है, इसकी वजह से उनकी जो पीक्स होती हैं वो घिस जाती हैं, है ना, या लेस शार्पर हो जाती हैं और उनकी हाइट्स कम हो जाती हैं. ओके, एंड ओल्ड फोल्ड माउंटेन हैज़ टू बी ओवर 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड. ओके, दे अपीयर वेरी रग्ड. जो यंग फोल्ड माउंटेन्स होते हैं वो रग्ड होते हैं, यानी कि रफ होते हैं, बट ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स आर राउंडेड अपीयरेंस, मतलब थोड़े से स्मूथ दिखते हैं. ओके, दे हैव शार्प पीक्स बट दे हैव फ्लैटर टॉप्स. ओके, यंग फोल्ड माउंटेन्स की पीक्स शार्प होती हैं, एज आई टोल्ड यू, कि वो अभी अभी बने हैं, उनके ऊपर ज़्यादा वेदरिंग का इफेक्ट नहीं हुआ है. बट जो ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं उनकी पीक्स जो है फ्लैटर हो जाते हैं. दे शो फ्यूअर साइंस ऑफ इरोजन. वही बात है, शार्प पीक्स क्यों होती हैं? बिकॉज उनमें इरोजन नहीं हुआ होता है, एंड दे मे शो साइंस ऑफ इरोजन. ओके, mountain ranges such as the example दिया है Andes, Alps, Atlas and the Great Dividing Range. These are some examples. And old fold mountains के examples हैं Urals and also studies Aravalli in India, Appalachians. ये सब क्या है? Old fold mountains के example है. Now let us move to another type, that is volcanic mountain. Okay, तो volcanic mountains क्या होते हैं? These are openings in the earth's crust. Basically volcano को ही volcanic mountains भी कहते हैं. Okay, so these are openings in the earth's crust through which the magma or hot molten rocks come out. Already we know that mountain की shapes में जो openings होती हैं earth में, जिनमें से hot magma या molten rocks बाहर आते हैं when they explode, जब वो फटते हैं, तो magma that flows on the surface of the earth is called lava. ठीक है, when it is inside the mountain या volcano it is magma, and when it comes out and flows it becomes the lava. अब कुछ spotlight features हैं volcanoes के, let us cover them quickly. मैग्मा रिजर्वॉयर. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके अंदर मैग्मा रिजर्वॉयर होता है, ये मैग्मा चैम्बर है. ओके, कंटिन्यूसली हम पिक्चर देखते जाएंगे साथ के साथ. तो इसमें मैग्मा सारा डीप इनसाइड द अर्थ इसमें कलेक्टेड होता है और बॉयल होता रहता है. फिर होती है कंड्यूइट और पाइप, द पाथ थ्रू विच द मैग्मा राइजेस टू द सरफेस. यू कैन सी ये है पाइप. ओके, जिसके थ्रू जो है मैग्मा बाहर आता है. वेंट और द ओपनिंग ऑफ द सरफेस थ्रू विच द मैग्मा कम्स आउट, ये है वेंट इसका. ओके, ये है मेन वेंट, यहाँ से आप देख रहे हैं जिसके थ्रू ये बाहर आता है, साइड से, यहाँ से, सब जगह से बाहर आता है. क्रेटर, अ बाउल शेप्ड डिप्रेशन प्रोड्यूस बाय वोल्केनिक एक्टिविटी. द वेंट ऑफ द वोल्केनो इज लोकेटेड विद इन द क्रेटर. ये जो बाउल शेप्ड ओपनिंग आप देख रहे हैं, ऊपर का जो माउथ होता है वोल्केनो का बाउल शेप्ड होता है. डिप्रेशन होता है, यानी
एक गड्ढा टाइप का होता है विच प्रोड्यूस वॉल्केनिक एक्टिविटी, और वेंट जो होता है, जो माउथ जिसमें से मैग्मा बाहर आता है, वो भी उस क्रेटर के अंदर ही होता है. ओके, दिस इज द क्रेटर जहाँ से ये चीज़ें बाहर आ रही हैं. नाउ लास्ट इज द लावा फ्लो, द स्ट्रीम ऑफ लावा फ्लोइंग डाउन द साइड्स ऑफ द माउंटेन. दिस इज द लावा फ्लो, ये जो आप देख रहे हैं फ्लो होता हुआ. ओके, दिस इज द लावा फ्लो. नाउ लेट अस मूव कि अनदर टाइप ऑफ माउंटेन कौन से होते हैं. ओके, अच्छा, वॉल्केनिक इरप्शंस थ्रो अप ह्यूज अमाउंट्स ऑफ लावा. वॉल्केनिक इरप्शन से बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ लावा निकलता है, ऐश, डस्ट, ये सब अर्थ सरफेस पे आता है. और जब ये मैटर कूल डाउन हो जाता है, कूल डाउन होके ये सॉलिडिफाई हो जाता है, सॉलिड बन जाता है, और मैसिव कोन शेप्ड स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिनको हम कहते हैं वॉल्केनिक माउंटेन. सो आप देख रहे हैं वॉल्केनिक एक्टिविटी से वॉल्केनिक माउंटेन्स फॉर्म होते हैं. जब लावा कम्स आउट एंड इट बिकम्स सॉलिड, तो जो रॉक्स बनती हैं वो, या जो पीक शेप्ड या कोन शेप्ड स्ट्रक्चर बनते हैं, दोज आर वॉल्केनिक माउंटेन्स. ओके, सो दीज आर एग्जाम्पल्स इनके कौन से हैं? माउंट फुजियामा इन जापान, माउंट किलिमंजारो इन ईस्ट अफ्रीका, एंड माउंट वर्सिवस इन द इटली इज एग्जाम्पल ऑफ वॉल्केनिक माउंटेन्स. ओके, नाउ लेट अस मूव फर्दर. So here is a fact about Mount Vesuvius in Italy, जो only active volcano है mainland Europe में. Okay, this mountain was erupted in 79 CE and it destroyed the city of Pompeii, जिसके ruins आज भी इटली में है, जो हमें ग्लिम्स देते हैं कि एंशियंट रोम में लाइफ कैसी होती थी. Now block mountains क्या होते हैं? Some massive parallel cracks occur in the crust of the earth. These are called faults. In the fold mountains we studied that अर्थ में फोल्ड्स आने की वजह से व्हेन देयर इज अ कन्वर्जेंस फोर्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस. कन्वर्जेंस मतलब प्लेट्स का पास आना, एंड डाइवर्जेंस मतलब प्लेट्स का दूर जाना. सो कन्वर्जेंस की वजह से अर्थ में फोल्ड्स आते हैं, और जब प्लेट्स दूर जाती हैं तो ऑब्वियसली उनके बीच में एक गैप बनता है, तो एक क्रैक बन जाते हैं. ओके, मैसिव बड़े बड़े क्रैक्स बन जाते हैं अर्थ की सरफेस में, क्रस्ट में, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? फॉल्ट्स कहते हैं. ओके, एंड द प्रोसेस बाय विच दे आर फॉर्म्ड, और जिस प्रोसेस से ये बनते हैं उन्हें हम फॉल्टिंग कहते हैं. ओके, फॉल्ट्स यानी कि क्रैक्स, और जिस प्रोसेस से बनते हैं उन्हें फॉल्टिंग कहते हैं. तो जो लैंड होती है क्रैक्स के बीच की, वो या तो पुश्ड अप हो जाती है या सिंक डाउन हो जाती है. मतलब या तो एक उसके बीच में एक गैप बन जाता है, या फिर जो साइड की क्रैक्स के साइड की जो क्रस्ट होती है वो ऊपर उठ जाती है. ओके, सो फॉर्मेशन ऑफ इसी से होता है ब्लॉक माउंटेन्स का फॉर्मेशन या रिफ्ट वैलीज का फॉर्मेशन. ठीक है, जो पार्ट अंदर सिंक हो जाता है, यानी बीच में गैप है, तो ऑब्वियसली एक सिंक होगा, एक खाली स्पेस होगा, दैट इज दी रिफ्ट वैली, और ग्रैबन कहते हैं इसको. अदर पार्ट ऑफ लैंड जो पुश्ड अप यानी ऊपर की तरफ उठ जाता है, वो होते हैं ब्लॉक माउंटेन्स या हॉर्स्ट. ठीक है, सो ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन यूरोप के, वो एक एग्जाम्पल है ब्लॉक माउंटेन का. अदर एग्जाम्पल हमारे यहाँ कौन सा? विंध्या रेंज है इंडिया की, सेरा नेवेडा रेंज है नॉर्थ अमेरिका की, एंड द वॉस्गिस माउंटेन इन द फ्रांस, एंड द हाज माउंटेन इन जर्मनी. ये सब एग्जाम्पल्स हैं ब्लॉक माउंटेन के. ओके, सो हियर यू कैन सी किस तरीके से ये प्रोसेस होती है. जब प्लेट्स जो हैं आप एक दूसरे से दूर जाती हैं, ये फोर्स है जो एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो बीच में इस टाइप के क्रैक्स फॉर्म हो जाते हैं. दीज टाइप्स ऑफ क्रैक्स आर फॉर्म. ठीक है, इनमें से कुछ एरिया ऊपर उठ जाता है एंड कुछ एरिया नीचे हो जाता है, सिंक डाउन हो जाता है. ओके, सो दीज फॉर्म दी block mountains. Hope that it is clear to you all. We'll continue our topic in the next video. Till then,